morning everyone. Myself Achal Mishra. We are class Humanities 12. Now we are going to representing an act which is concept of banking system, which include central bank and commercial bank. So let's start this act. Now I am going to tell you about the central bank and its function. Central bank is an apex bank which controls the entire banking system of a country. It has sole authority of issuing notes and control the supply of money in the economy. The central bank provides accept deposit of commercial bank and advance them loan, but it does not directly connect with the general public. Central bank generally focus on the stability and growth of country's economy. It was established on the 1st of April 1935. Now I am going to tell you about the function of central bank. First of all, authority of issuing notes. Central bank have monopoly authority of issuing notes except the 1 rupee coin which is issued by Ministry of Finance. Second, lender of the last resort. It means that if commercial bank fails to get deposit from anywhere, it went central bank as a lender to the last resort. And third one is banker, advisor, agent. Commercial central bank will act as advisor, supervisor, agent to the commercial bank. Now I would like to call Lucky Shukla and she will tell you about the commercial bank and its function. I think Mr. I am represent the advancing of loans by act. ये एक पर्सन ए है जो बैंक के पास गया है लोन लेने के लिए। हेलो मैम, बताइए हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम मुझे लोन चाहिए। कितने तक का? 2 लाख तक। 2 लाख तक। सिक्योरिटी आपके पास कितने तक की है? 3 लाख तक है मैक्सिमम। आपको 2.5 लाख की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा कि कैसे इन्होंने सिक्योरिटी दी अपनी और क्या नाम है बैंक से इन्होंने लोन लिया। इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड एडवांसिंग लोन। How can I help you, ma'am? मैम मुझे लोन चाहिए था। मैम आपको हमारी पॉलिसी के बारे में पता ही होगा जो कि होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर आपको लोन चाहिए 80,000 तक का तो आपको 1 लाख की सिक्योरिटी हमारे पास सबमिट करनी होगी, तभी हम आपको 80,000 का लोन हम प्रोवाइड करेंगे। मैम मुझे मेरे लोन वापस है जो आपने कुछ समय पहले मुझसे लिए थे। सॉरी मैम, अभी हमारे बैंक के पास इतना पैसा नहीं है, अभी हम आपको उधार वापस नहीं कर सकते। हेलो मैम, How can I help you? मैम बैंक ए जिसने मुझसे कुछ समय पहले लोन लिया था, अब मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक करना है तो मैं उससे कोई पैसे नहीं, तो अब वो मेरे पैसे को वापस नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आपका जो कैश रिजर्व है उसको हम हमारी क्लीनिंग हाउस की पॉलिसी के थ्रू हम आपको वापस कर देंगे। I am the representative of commercial bank. Commercial bank is the basic unit of Indian banking system. Like other businesses, commercial bank also aim to earn profit, and for this, they offer a variety of services to their customers. Commercial bank is an institution which performs several functions like accepting deposits, granting loans, making investments with the aim of earning profit. There are many commercial banks in our country like SBI, PNB, BOB, Allahabad Bank and many others. Now I am going to explain the function of commercial bank. There are mainly 2 functions of commercial bank. First, accepting deposit and second, granting loans. Accepting deposit. Commercial bank accept deposit according to the needs of different section of the society. Commercial bank mainly accepting deposit in 3 forms. First, saving deposit, current account deposit and fixed deposit. Current account deposit and saving deposit. The primary function of current account deposit is the business purpose. Current account deposit का जो मेन यूज होता है वो है बिजनेस पर्पस। अगर आप बैंक में सजेशन लेने जाएंगे तो वो बोलेंगे अगर आप बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो करंट अकाउंट करवाइए, वाइल अगर आप अपनी सैलरी के लिए या फिर सेव करने के लिए अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आप सेविंग अकाउंट करवाइए। अगर बात करें विथड्रॉल या ट्रांजैक्शन एक्टिविटी के लिए तो करंट अकाउंट में आपको अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ विथड्रॉल या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वाइल सेविंग अकाउंट में आपके पास लिमिट सेट होती है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ना तो विथड्रॉल ना तो ट्रांजैक्शन। थर्ड, अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की तो करंट अकाउंट में आपको बैंक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं करता लेकिन सर्विस चार्ज करता है क्योंकि वो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रखा है लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, इसलिए वो आपसे एक सर्विस ज़रूर चार्ज करता है। सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 5% बैंक
इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात करें मेंटेन एवरेज बैलेंस इन अकाउंट, तो करंट अकाउंट में आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है जो कि सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। सेविंग अकाउंट में भी आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है, जीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन करंट अकाउंट से कम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आपको करंट अकाउंट में ही प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब अगर आपके पास अकाउंट में 10,000 है और आप 20,000 रुपये अगर विथड्रॉल कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बस आपका जो अकाउंट है वो माइनस में चलेगा और जब आपके पास अकाउंट में उतना पैसा आएगा तो बैंक आपसे कवर अप कर लेगी। एंड लास्ट, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट हम तब करवाते हैं जब हम एक अमाउंट अपना बैंक के पास फिक्स करवा रहे हैं एक समय के लिए। फिक्स डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है और वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा और कितने समय के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट पे चेक की फैसिलिटीज नहीं होती है। Now I'm going to tell you about credit creation, which is the most important function of commercial banks. Commercial banks accept deposit from the public and give loan to them. कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं और उसके बाद बिजनेसेस को और स्मॉल फार्मर्स को, इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं। इस तरह उनका क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता है। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, बिकॉज दे हैव टू कीप सम रिजर्व विद देमसेल्व्स एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड सम विद द सेंट्रल बैंक एज कैश रिजर्व रेशियो। इनकेस अगर कोई डिपॉजिटर अपना पैसा वापस लेने के लिए आता है तो उनके पास कुछ डिपॉजिट होना चाहिए जिससे कि वो उसे वापस कर सकें। इसीलिए सेंट्रल बैंक ने ये लॉ इम्पोज किया हुआ है ताकि उनके पास कुछ पैसे हो और वो डिपॉजिट वापस कर सके। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल श्रेयांशी तिवारी who will tell you about with an example. Let's understand the process of credit creation by commercial bank with the help of an example. Let's suppose कि एक पर्सन ये है, इन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया। अब बैंक इसका 10% एज ए क्रेडिट रिजर्व रेशियो अपने पास रखेगा और बाकी का 9,000 जो बचेगा उसमें से जो एज ए लोन लेंड करेगा। अब एक पर्सन भी है, ये आती है बैंक से लोन लेती है, जो कि बैंक अब इनको लोन देगा। पर्सन भी जाके एक किसी शॉप से उन्होंने कुछ परचेज किया, अब उन्होंने वो 9,000 में एक जैकेट परचेज कर ली। अब ये एज ए सेकेंडरी डिपॉजिटर बैंक के पास जाएंगे तो उन्होंने ये 9,000 रुपीज़ बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया। अब ये बैंक इसी 9,000, अब जैसे सपोज करते हैं अब उसका क्रेडिट रिजर्व रेशियो 5% है। अब ये 9,000 का 5% जो कि 450 है वो अपने पास रखेगा बैंक, और बाकी का जो 8,550 रुपीज़ है वो एज ए लोन देगा। यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, ये क्रेडिट क्रिएशन का और डिपॉजिट का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व है जीरो ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है क्रेडिट क्रिएशन का। एंड दैट्स हाउ द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। थैंक यू।